Namaskar, how are you all doing today? Hi, this is Anita Ajaypai, your tarot card reader and a tarot guide. So today the spread what I've put in on the screen is actually how is your week going to be? How is your April first week going to be? Now this counts from the 31st to the 6th of April, 31st March to the 6th of April. How is your first week of April going to be? Now here I have taken up 7 different cards. मैंने spread बना के रखा हुआ है. Let's see हर एक दिन का क्या है, कैसा है, क्या होने वाला है. Let's just check and देखते हैं टैरो क्या गाइड करता है हम लोगों को for this particular week. सो मंडे के लिए मैंने सोचा because it's the first day of the week, we'll focus on the root and the readiness. We'll focus on what needs grounding. I mean, हर एक इंसान मंडे ब्लूज में रहता है या कुछ कुछ गड़बड़ में चलता रहता है. पहला दिन है यार, हफ्ते का कैसा होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें चलती रहती है. तो आई जस्ट थॉट लेट अस फोकस ऑन व्हाट नीड्स ग्राउंडिंग एंड व्हाट एनर्जी स्टार्ट्स द वीक. ओके, द फर्स्ट कार्ड, वाओ, ये हमेशा से मेरा फेवरेट कार्ड रहा है. 9 ऑफ कप्स. 9 ऑफ कप्स जब आया है, आई वुड से कि अपने आप को संभाल के रखिएगा. ग्राउंडिंग एनर्जी ज़रूरत है क्योंकि आप शायद थोड़ा सा इमोशनल हाई रहेंगे. इमोशनली आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को क्या बोलूँ मैं, भावनाएं में बहते हुए देखेंगे. मे बी यू विल फेस सर्टन थिंग्स विच विल एक्चुअली make you get carried away, or you just don't know how to handle emotions. So there you got to be pretty careful about your emotions. So stay grounded with your heart chakra. Keep your heart chakra balanced. अभी heart chakra को balance कैसे करते हैं? I would just say कि put your hands on your heart, like literally on the center of the chest. वहाँ पे आपका heart chakra होता है. So put your heart on the chest and just say to yourself that I feel safe, I am safe, and I'm emotionally available. Okay, so this would definitely help you stay grounded. And of course, अगर start of the week उसके लिए मैं बोलूँ तो this is an amazing card where you can easily manifest what you want, whatever you're looking for, whatever you've been focusing on. If you have a certain way to plan up, अगर आपका March काफ़ी problematic गया है, remember today is the 31st of March. I mean this day. So 31st is like the last डे. तो मंडे आपकी एनर्जीज, आप इतना ही बोलो कि भाई हो गया मार्च खत्म, अभी कल से नया दिन आएगा. लेट्स सी हाउ इट इज, व्हाट हैज टू हैपन. जो सोलर एक्लिप्स था, लूनर एक्लिप्स था, जो रेट्रोगेट्स था, जो अमावस्या आना था, जो भी होना था सब हो गया. होली हो गई, ईयर एंडिंग हो गया मार्च. जिन लोगों को ईयर एंडिंग होता है, जो कैलकुलेशंस फाइनेंशियल इसमें देखते हैं, सब कुछ हो गया. अभी शुरुआत करनी है तो उस बेसिस पे आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हो. प्रॉबेबली अगर आपके बच्चे हैं जिनके साथ आपको वेकेशन जाना है या ऐसे ही आपको वेकेशन जाना है तो भी आप उसका प्लान कर सकते हो. डेफिनेटली मंडे grounding on, focus on your heart chakra, just get balanced, stay available emotionally. Emotional quotient थोड़ा सा हाई रखना, ज़्यादा दिमाग खराब मत करना. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, भले के लिए होता है, and everything will go smooth in your life. Just keep saying to yourself, I am fine, I am safe, I am loved. That's all, and you will have a great Monday, a great start of the week. All right, okay, moving on to the next card, which is a Tuesday card. भी मंडे के दिन हमने थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर ही लिया है, तो ट्यूसडे के दिन आई वुड से एक्शन एंड मोमेंटम पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, जहाँ पे आता है क्वेश्चन कि व्हाट एक्शन शुड यू टेक टुडे. आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप मोटिवेट रहें. व्हाट इज दैट one factor which will motivate you? So let's see what it is. Whoa, King of Pentacles. My goodness, क्या beautiful card निकला है. So King of Pentacles, action आपको ये लेना है कि आपको एक planning करनी है. You have to literally make a financial planning. You have to focus on
आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये नया साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, कैसे लेकर आएगा, क्या क्या हो सकता है आपके लाइफ में। तो उस बेसिस पे एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे यू हैव टू प्लान योर एंटायर ईयर। आज के दिन पे आपका यही काम है, द एक्शन यू गॉट टू टेक, द मोमेंटम यू गॉट टू बी इन फाइनेंशियल प्लानिंग। Absolutely, because that is what is going to keep most of you motivated. Obviously हम लोग कमाते किस लिए है? अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, अच्छी जगह घूमने के लिए, अपने बच्चों को खुश रखें, अपनी बीवी को खुश रखें, अपने पति को खुश रखें, अपने आप को खुश रखें, सबको खुश रखें. So that is all what matters. And right, so if you have a proper financial planning, then everything is going to be wonderful. So my dear friends, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि the action today is financial planning, and that is what will keep you motivated the entire week. All right, chalo, let's move on to वेडनेसडे. ना वेडनेसडे के लिए मैं सोच रही हूँ अभी मिड ऑफ द वीक जैसा हो रहा है तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन लेके आते हैं, थोड़ा बहुत विजडम और रिफ्लेक्शन पे फोकस करते हैं. सो व्हाट लेसन आर यू लर्निंग दिस वीक? आई मीन व्हाट लेसन is there which needs what is that area of life which needs awareness? That's what will be the focus point, कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, आपकी अवेयरनेस कहाँ पे जानी चाहिए, आपको कहाँ पे अपने विजडम को लेके आना है, विच पार्ट ऑफ योर लाइफ यू नीड टू लिटरली चेक ऑन. सो दिस इज व्हाट आई वुड से. और उसका है डेथ कार्ड. नाउ डेथ कार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम डेथ कार्ड जो दिखता है वो बहुत स्कैरी हो जाता है, तो लोग डर जाते हैं, अरे यार क्या होने वाला है, क्या है. बट डेथ कार्ड इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन. डेथ कार्ड वो है जो आपको याद दिलाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी है. मतलब ये कि यू गॉट टू लेट गो ऑफ द पास्ट सो दैट यू कैन वेलकम द new thing. You can make space for new stuff. So death का ये है कि मैं इतना कहूँगी, अगर आपके लाइफ में कोई रिलेशनशिप है जो आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, जो आप नहीं कंफर्टेबल हो, तो उसको जाने दो. या फिर आपके लाइफ में कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे आप बहुत तरस रहे हो कि अभी बस हो गया यार, मैं नहीं कर सकता ये काम, तो प्लीज़ लुक फॉर अनदर वन, लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव करियर, लुक फॉर समथिंग जो आपका पैशन है, जो आपको पसंद आता है, जो आपको अच्छा लगे. सो ऐसे चीज़ को कुछ ये कीजिएगा. तो दिस इज़ व्हाट आई वुड से कि यू गॉट टू सी ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, या फिर मे बी यू गॉट टू इन्वॉल्व इन समथिंग एल्स जो आपको खुशी में दे सके, जो आपका पैशन है. या फिर लुक फॉर सम अदर रिलेशनशिप वेयर यू आर फाइंडिंग हैप्पीनेस और पीस. और मानो अगर उस टाइम पे आपके दिमाग में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि टेक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल योर रिलेशंस. Probably you just need a break, a one-day break, maybe just go into isolation, or should I say just go into your cocoon and look for yourself कि भाई क्या चल रहा है. वो बोलते हैं ना, रिफ्लेक्ट सेल्फ, ये कीजिएगा, इंट्रोस्पेक्शन कीजिएगा. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. तो आज के डेट पे मतलब वेडनेसडे को जो कार्ड आया है डेथ कार्ड, विजडम एंड रिफ्लेक्शन का जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, उस हिसाब से मैं आपको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ उस चीज़ को देखिए जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, या आपका कोई भी चीज़ हो जो आपको, आपकी कोई हैबिट हो, आपकी कोई एडिक्शन हो जो आपको बहुत मुश्किल में डाल रही है. तो यू नीड टू लेट गो ऑफ इट. ओनली देन यू कैन एक्चुअली मैनेज योर लाइफ अहेड. ओके, सो प्लीज लेट द पास्ट गो so that you welcome the newness in your life. This is what is there for Wednesday. Let go of the past and welcome and make space for the new things. Now moving on to Thursday, that is, let's focus on growth and expansion. Okay, growth and expansion, obviously मैं यही कहूँगी कि where should you stretch beyond your comfort zone. काफ़ी अभी डेथ कार्ड आ गया था वेडनेसडे के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में जा चुके हो. दैट इज़ वाई दिस कार्ड इज पॉप्ड अप. और उसी बेसिस पे लेट्स सी क्या टैरो एडवाइस दे रहा है कि आप कहाँ पे आप अपने कंफर्ट जोन में घुसे पड़े हैं, जहाँ से आपको निकलना है, सो दैट यू कैन मेक बेटर थिंग्स. लेट्स सी व्हाट इट इज. विक्टिमहुड. जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर उसके लाइफ में वो ये चीज़ कहता है बार बार कि
कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, वाई मी, वाई ऑल प्रॉब्लम्स आर विथ मी, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही वो करना है. बट प्लीज, द मोमेंट यू कीप cribbing, यू आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड. आप जितना अपने आप पे सेल्फ पिटी में जा रहे हो उतना ही आप कंफर्टेबल हो रहे हो. बिकॉज जैसे आप सेल्फ पिटी पे जाते हो, देयर विल बी अ फ्रेंड और अ फैमिली और समबडी हु रियली लाइक्स यू विल कम एंड कंफर्ट यू. वो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है, आप उसी लूप में बंध जाते हो एंड यू विल नॉट ग्रो इन योर लाइफ. बिकॉज द मोर विक्टिम यू प्ले, द वर्स्ट लाइफ विल बिकम. Please take a stand for yourself. This card is literally telling you, stop cribbing, stop crying. जो चीज़ हो चुका है, जो चीज़ जा चुका है, उसके बारे में रोना बंद करो. अपने आप पे पिटी, अपने आप पे तरस खाना प्लीज़ बंद करो. स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. हमेशा दूसरों से मदद मांगना अच्छी बात नहीं है, या फिर ये सोच के बैठना कि अरे ठीक है, मैं अगर ऐसा करूँगा तो वो आके मुझे हेल्प करेगा या मेरे को ऐसा ही करना चाहिए. ये जो आप मनगढ़ंत कहानियाँ बना के बैठते हो आपके दिमाग में, please get out of that. You got to know one thing for sure. The more you take a stand for yourself, the universe will help you. The moment you start cribbing about why me, what am I done, and why I have to do this, I have to do that, and all of it, trust me, friends. Trust me on that. The universe will actually make you suffer and will give you similar situations where you will end up being in the same loop. So instead of saying, I am the one who is doing things, I am the one who has to suffer, I am this, I am that, just say, okay, universe, what different can I do here to create a different reality? What change can I bring in my life to create a better reality for myself? Where am I not dealing things properly, or what am I supposed to learn from here that I'm not learning? Everywhere, all these questions, you change, you tweak a bit. Instead of saying why me, say, okay, what am I supposed to learn here? Things will start changing in your life. So for creating a better version of you, stop self-pity and playing a victim card. This is a reminder for you. If you want to grow and expand yourself in this beautiful universe, if you want to literally have a beautiful life, or create a bigger reality, then the best thing you can do is stop playing a victim card and take up the stand for yourself. Take the responsibility. Own your mistakes and do not blame the world for you, okay, for your mistakes. Remember that the day you just surrender and you say, okay, I have done this, I have created this blunder, now what? How can I change my life? Trust me, friends, universe will show you the way out. Okay, let's see. Moving on to Friday. What is it on Friday? Friday को मुझे लगा थोड़ा सा बैलेंस और अलाइनमेंट के लिए फोकस करते हैं. सो हाउ कैन यू रिस्टोर द हारमोनी? ऑब्वियसली यहाँ पे डेथ कार्ड आया था, फिर यहाँ पे आया आपका 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो ये दोनों कार्ड्स जो हैं आपको बता रहा है बार बार कि लेट गो करो, विक्टिमहुड प्ले मत करो. तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा जो मिसमैच हुआ है, उसके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा बैलेंस और अलाइन अपने आप को कैसे करना है. उसके लिए आप अपना जो हार्मोनी है, आपकी बॉडी में जो एक हार्मोनी होता है, उसको कैसे आप अलाइन कर सकते हो, वहां पे क्या करना है. हाउ डू यू रिस्टोर योर हार्मोनी? नाउ द कार्ड इज टावर. वाओ, ट्रस्ट मी, कमाल का स्प्रेड निकला है ये. आई नेवर थॉट आई वुड गेट सम कार्ड्स लाइक दिस. आई एम लिटरली I'm literally in awe. Okay, the Tower card बार बार चिल्ला के यही बोलता है, भाई अपने आप को संभालो, अपने ईगो को कंट्रोल में रखो. Rather, कभी एक बार तो सरेंडर करके सीखो. The moment you actually surrender. Now बार बार सरेंडर बोल रही है, किसको जाके सरेंडर करे? अगर ये आपके दिमाग में चल रहा है तो मैं ये बोलूँगी कि कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा. मानो आपने एक चीज़ मांगा है भगवान से, आपने यूनिवर्स में एक ऐसे ही बोल दिया कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, या मुझे ऐसा वाला रिलेशनशिप चाहिए, या मुझे इतने मार्क्स चाहिए, या मुझे ये वाली प्रमोशन चाहिए, या इतना सैलरी चाहिए, ये वगैरह वाला जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, एक बार आपने वो डाल दिया.
उसको कंट्रोल मत करना। अरे अभी तक नहीं हुआ, अरे अभी कब मिलेगा, अरे ऐसा कैसे हो रहा है, अरे वो क्यों हो रहा है, अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, अरे उसको मिल गया मुझे क्यों नहीं मिला। Stop controlling things. That happens when your ego is high, when you are unable to accept why life is doing whatever it is doing with you. So the best way to handle, the best way to balance yourself, the best way to bring in harmony is 5 मिनट बैठो हर दिन, मेडिटेट करो, जस्ट बी इन अ सिंपल मुद्रा, वॉट एवर सूट्स यू। या तो आप ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हो या पृथ्वी मुद्रा में बैठ सकते हो, जो भी मुद्रा आपको सूट करे उस पे, या फिर सिंपल बस ऐसे ही बैठो, या अपने दोनों हाथ को अपने हार्ट चक्रा पे रखना, सेंटर ऑफ द चेस्ट, वहाँ पे रखो एंड जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ एंड जस्ट कीप सेइंग आई एम सेफ, I am safe. You know, this is all you got to do. या फिर एक अफर्मेशन भी आप अफर्म कर सकते हो इस पूरे हफ्ते के लिए। I walk this week with clarity, courage and balance. Each day unfolds with divine purpose and I trust in the wisdom of my path. Of course, I'll put the affirmation in the description, और मैं इस पे भी डाल दूंगी so that you can just remember it when you're seeing the video and make a note of it so that you can keep repeating the affirmation, which will help you stay focused with a lot of courage and clarity and bring in a lot of harmony in your life. Okay, so friends, मैं इतना ही कहूँगी कि आप अगर आपको अपने आप को बैलेंस करना है तो चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। Leave it completely to the universe. Universe will give you whatever is best for your highest good. जो भी आपका कर्मा है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो आप जितना भी सर पटकें, जितना भी जो भी करें, मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आप कंट्रोल में नहीं रहते हो। सो लेट गो ऑफ द कंट्रोल, सरेंडर योर ईगो एंड जस्ट से जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। वट एवर इज हैपनिंग फॉर माई हाइएस्ट गुड, इज हैपनिंग फॉर द बेस्ट ऑफ माई हाइएस्ट गुड। सो आई रिसीव इट विथ all ease, joy and glory. That is all you got to do. Now let's move to the Saturday. अभी इतना सब कुछ हो गया है तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ध्यान दे देते हैं। So renewal and preparation. What should you release and how should you prepare for the next week, for the coming week? Let's see. Saturday का कार्ड आया है 3 of Swords. Now 3 of Swords मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया है या आपको लगता है कोई धोखा देने वाला है, तो सही लगता है कोई तो है जो आपको सबक सिखा के जाएगा, आपको वो लेसन सिखा के जाएगा जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी अभी। तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं इतना ही कहूँगी ना। स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में बहुत फ़र्क है। ओके, प्लीज़ डोंट मिक्स देम। आपका कोई जो भी रिलीजन हो उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज़ ये मत कहना कि मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ या जाता हूँ या रोज़ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हूँ। नहीं, मंदिर जाने वाले कर्म करते हैं, अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, और उनको उनका ध्यान पे भी नहीं रहता है। हर कोई जो नमाज पढ़ता है, हर कोई जो चर्च जाता है वो साधु संत नहीं होता है। हर कोई मंदिर जो जाता है वो भी साधु संत नहीं रहता है। तो इतना याद रखिएगा कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी 2 अलग चीज़ें होती हैं। स्पिरिचुअलिटी वो है जो लिबरेशन में मानता है, सोल्स लिबरेशन, दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वेयर इट इज बीन टॉट इन लॉट ऑफ पुराणास एंड लॉट ऑफ वेदास, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। दे जस्ट कनेक्ट इट विद अ पर्टिकुलर रिलीजन, विद अ पर्टिकुलर गॉड, विद अ पर्टिकुलर सिंबल एंड देन लीव इट एट दैट, और जो उसको स्ट्रॉन्ग एक ये बना लेते हैं। बट दैट्स नॉट ट्रूथ। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट लुकिंग इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्शन करो, आप कितना सही हो, आप कितना गलत हो, आपके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो क्यों हुआ है, उस पर एनालाइज करो। अगर इस जन्म का नहीं है तो कोई और जन्म का आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। यू नो, दे से कर्मा इज अ बिच, शी विल कम टू यू एनी टाइम, शी विल नॉट लीव एनीबॉडी। तो उस हिसाब से दिस कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट संडे को आप सैटरडे को
जो है मैंने बोला कि स्पिरिचुअली आपको क्या करना है, आपको कैसे मैनेज करना है, तो उस हिसाब से मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ फोकस कीजिए व्हाट यू कैन लिटरली लीव बिहाइंड. अगर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, जस्ट forgive them and move on. Instead of taking revenge or instead of doing something drastically bad or harming yourself or harming the other person, don't do all those things. Just forgive and move on. Because just now मैंने कहा था कि karma is a bitch. She will come to everybody who has done wrong to anybody. Okay? तो आपका काम है आगे बढ़ना, माफ करो लोगों को. You will surely see some betrayal on Saturday, and I would just say you got to relax a bit, you got to have that thing. जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. You know, all these cards which have come, it's all about. यहाँ पे पहला 2 कार्ड बहुत ही बढ़िया था, बट उसके बाद डेथ वाला कार्ड जो आया ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, ऑब्वियसली जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी. कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट रहेगा, कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग होगा, कुछ लोगों के लिए it's going to be okay yaar, theek hai. It just depends on how deeper you are evolved. So here for Saturday, I would say with 3 of swords coming into the picture, betrayal will happen. Now this betrayal is required for you to move ahead in life. कभी कभी हमारे दुश्मन हमारे सामने रहेंगे और हमको पता नहीं चलता है. जब तक वो धोखा नहीं देते हैं, we don't realize it. So that is the reason I would strongly say that it's good. अगर कोई धोखा देके जा रहा है, say goodbye and forgive and move on in your life. Finally, we have Sunday. Sunday का कार्ड है Queen of Swords, और इस कार्ड के साथ मैं आपको यही बोलूँगी, what you have to do is लिटरली आगे देख के चलिएगा. जैसे ये पिक्चर में क्वीन ने स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है, वो सिर्फ फोकस उसका आगे है. हालांकि इनर चाइल्ड है यहाँ पे, जो उसको काफ़ी दर्द हो चुका है लाइफ में, लेकिन यहाँ पे 2 ब्यूटीफुल क्रेसेंट मून भी है. तो इसके हिसाब से मैं यही बोलूँगी कि ये कार्ड वो है जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आता है. तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आ रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट लुकिंग फॉरवर्ड, स्टे फोकस्ड. आपको अपना एक गोल बना के रखना है. वो गोल ही आपको आगे, आपका मोटिवेशन रहेगा जो आपको आगे लेके जाएगा. सो पूरा का पूरा आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं अगले हफ्ते कैसे करूं, क्या करूं, कैसे जाऊं, वो वाले चीज़ पे फोकस कीजिएगा. नॉट कि आपको किसने धोखा दिया, आपका पिछला दिन कैसा गया, आपका क्या क्या हुआ, आपका नुकसान कितना हो, उस पर फोकस ना करके अगर आप आगे वाले चीज़ पे फोकस करेंगे तो बहुत आपको हेल्प होगा. सो दिस इज़ व्हाट आई वुड से. ओवरऑल मैं एक कार्ड निकालती हूँ. लेट्स सी व्हाट डज द यूनिवर्स, व्हाट डज द टैरो कार्ड्स वांट टू एडवाइस ऑल ऑफ यू. कि ओवरऑल आपका ये हफ्ता क्या मैसेज दे रहा है. जस्ट 1 एडवाइस फॉर द एंटायर वीक वुड बी जजमेंट. जैसी करनी वैसी भरनी. तो एज सिंपल, आपका हर एक इंसान का, मतलब हर एक कुत्ते का दिन आता है, तो उसी हिसाब से जैसी करनी वैसी भरनी मैंने बोला. तो जो आपने कर्म किया है उस चीज़ के उस हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी. अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा किया है तो बुरा होगा. ऑब्वियसली certain positions have been shifted, so most of them would face things accordingly. किसी का 7:30 खत्म हो रहा है तो किसी का स्टार्ट हो रहा है, किसी का पंचमी खत्म हो रहा है तो किसी का स्टार्ट हो रहा है. तो दैट्स हाउ इट इज़. किसी का 1.5 साल अच्छा होने वाला है, किसी का 1.5 साल बुरा होने वाला है. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. तो सैटर्न इज ऑल अबाउट जस्टिस. वो ही देते हैं जो आपका, मतलब जैसा आपका कर्म है वैसा आपको फल मिलने वाला है. तो ये हफ्ता जो है, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को संभाल के रखिएगा. अपने ईगो को प्लीज सरेंडर कर दीजिए. डू नॉट कंट्रोल, डू नॉट थिंक और ओवर थिंक एंड बर्डन योर सेल्फ. डोंट प्ले अ विक्टिमहुड. सेल्फ पिटी बंद कीजिए और बस इतना ध्यान रखिएगा कि यू आर द मैनिफेस्टर, यू आर द क्रिएटर एंड यू हैव इट इन यू. सो जस्ट
balance yourself, just meditate as much as possible every day for 5 minutes at least, and affirm, I walk this week with clarity, courage, and balance. Each day unfolds with divine purpose, and I trust in the wisdom of my path. I hope you've liked this reading. I hope this reading resonated with you. अगर आपके साथ ये reading resonate किया है, please write in the comment section. If you like the video, do not forget to share and subscribe to my channel. Thank you for all your love and all the best. And please remember, this is a general reading. Consider it only if it resonates with you. And more importantly, जो भी टैरो कार्ड्स बता रहे हैं वो आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, बट रिमेंबर, यू आर द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. थैंक यू. गुड नाइट. Thank you. Whatever time you're seeing this, I have recorded this video in the evening, so I'm saying good night. But whatever time you're seeing this video, have a lovely day, have a lovely evening, and have a lovely week ahead. Bye-bye.